Hello and welcome, my dear friends. Today the topic is about preparation and properties of some addition polymers. So there are a number of addition polymers. I told you in previous videos also that we have polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, we have Teflon, PVC, etc. So we will discuss them one by one. So the first polymer we will discuss is polyethylene. I talked about their mechanism of preparation already, that we can have their preparation by means of either free radical mechanism that involves either light, heat or organic peroxides, जिसकी वजह से radical formation initiate होता है, बनता है, उसके बाद में propagation chain होती है, then we can have the termination of chain to form the polymer. In case of polar mechanism, we can have acids, hydrofluoric acid HF, we can have sulfuric acid also, that can give you H plus, that can initiate the process of polymerization, then can propagate it and finally can terminate the chain. So we have discussed those mechanisms already. We'll discuss here just preparation. How do we prepare them? So polyethylene is the first polymer to be discussed. So how are we basically making polyethylene? We have certain things to remember. Number one is monomeric unit जो इसमें है, that is ethene or ethylene as far as common system is concerned, that is CH2 double bond CH2. Then you are having the temperature must be around 200 degrees Celsius and pressure shall be equal to 1000 atmospheres. Now, first of all, what happens in the presence of this occurs in the presence of oxygen. ऑक्सीजन क्या करता है? पहले ऑक्सीजन इथिलीन के साथ कंबाइन होकर पेरोक्साइड बनाता है. पेरोक्साइड बनने के बाद में वो फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इनिशिएट कराता है, फिर पॉलीथीन बनता है. सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पहले पेरोक्साइड बनता है विद इथीन. सो वी कैन राइट द स्टेटमेंट ओवर हियर. O2 reacts with ethene to form peroxide. This then initiates the chain for polymerization. अब हमारे पास क्या है? ईथीन है. Now pressure is 1000 atm, temperature is 200 degrees C, and in the presence of oxygen you are getting basically a polymer that is CH2 single bond CH2 whole N. This is the polyethylene and this was the ethene monomer. इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं पॉलीथीन को. अब what can be its properties? Along with uses. So we have basically जो आपका polymer है, it's having three types. It exists in three types. Based on polymerization, number one is low density polythene, LDP polyethylene, and we have next high density polyethylene, that is HDPE, and we have then high molecular weight polyethylene, that is HMWPE. इन तीन किस्मों में ये एग्जिस्ट करता है, दैट इज लो डेंसिटी polyethylene, high density polyethylene and high molecular weight polyethylene. They have different uses, and this is the polymer which is lightweight, because plastics are usually lightweight and insulator and having insulating properties. Insulator, lightweight and insulator. It is resistant to chemicals, water, etc.
It is not affected easily by chemicals, acids, bases, salts, etc. It is not affected by water. It's resistant to water. And next is it's thermoplastic. It's a thermoplastic polymer. Thermoplastic का माने ये है कि by heating it can be given it basically softens, it melts, जिसकी वजह से आप इसको different shapes दे सकते हैं. You can make containers, you can make bottles, etc. So thermoplastic hence can be recycled. Hence can be recycled into different shapes. Hence can be recycled into different shapes. This polymer is basically durable also. ये durable भी है, वो essential है, hence is essential for packaging purposes, packaging applications. So हम पैकेजिंग इस्तेमाल कर सकते हैं. पैकेजिंग में बैग्स बनाते हैं प्लास्टिक के, पॉलीथाइलिन के, तो दैट इज फॉर पैकेजिंग पर्पसेस. It's having good fatigue. Good fatigue का माने ये है कि it's having high weariness. जैसे हम बोलते हैं wear and tear, तो it can withstand, अगर इसका जितना भी काम लिया जाए, so it can withstand that wear and tear. So it's having good fatigue, high weariness. So these are some of the properties of polyethylene that we talked about. It exists in three forms: low density polyethylene, high density polyethylene, and you have high molecular polyethylene. And these are basically lightweight systems and are insulators, hence can be used for insulation. Resistant to chemicals and water. It's water resistant, it is chemical resistant. It is thermoplastic, means by heating it gets softened and then melts, and जिसकी वजह से आप इसको different shapes बना सकते हैं. You can put them into cups, you can put their shapes into bottles, etc. So hence can be recycled into different shapes. Next is it's having high durability, जिसकी वजह से ये essential होता है for packaging applications. It's having good fatigue, मतलब it can withstand high work. जितना भी इसको काम लिया जाए तो it can withstand that. It doesn't have much wear and tear, जिसकी वजह से इसकी good fatigue है. So अब इसके uses क्या बनते हैं? Low density polythene जो है, low density polythene, ये हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं for zipping. Used for zipping storage bags. स्टोरेज बैग्स जो होते हैं आपकी, मतलब जितने भी बैग्स होते हैं जिसमें आप स्टोर करते हैं कुछ, उसका जो जिप होता है, जिप इज मेड ऑफ दिस लो डेंसिटी पॉलीथीन. या प्लास्टिक रैप्स, आप रैप करना चाहते हैं कुछ आइटम को, किसी आइटम को रैप करना चाहते हैं बाय सम प्लास्टिक मटेरियल, दैट इज द पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन. हाई डेंसिटी पॉलीथीन की क्या एप्लीकेशन है या यूज है? दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर गार्बेज डस्टबिन्स, यूज्ड टू मेक गार्बेज बिन्स. गार्बेज मीन्स डस्टबिन्स, जो सॉलिड डस्टबिन होते हैं स्ट्रॉन्ग वाले, वो आप बनाते हैं यूजिंग हाई डेंसिटी पॉलीथीन. और मिल्क जग्स, जो मिल्क जग्स होते हैं उसमें आप इस्तेमाल करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन. एंड नेक्स्ट इज हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन. इसका यूज़ क्या होता है कि ये हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स. फॉर मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स लाइक सिरिंज होते हैं या वाइल्स होते हैं, ये सारे जो है हमें इसको बना सकते हैं यूजिंग हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन. सो दिस इज द प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ पॉलीइथाइलिन एंड द प्रिपरेशन. नेक्स्ट पॉलीमर हम लेंगे नंबर 2 करके, दैट इज पॉलीस्टाइरीन. पॉलीस्टाइरीन कैसे बनता है? इसका जो मोनोमर है दैट इज स्टाइरीन. स्टाइरीन क्या होता है? इट इज एक्चुअली विनाइल बेंजीन. इट इज विनाइल बेंजीन दैट्स कॉल्ड स्टाइरीन. तो ये जो है ये पॉलीमर आपको इस मोनोमर से बनता है. और कैसे बनता है? यू आर यूजिंग कैटलिस्ट, क्या आप इस्तेमाल करते हैं इसमें? बेंजोइल पेरोक्साइड. इसमें भी आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करता है, बिकॉज पेरोक्साइड जहां भी आपको
दिखेगा तो वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो अप्लाई होगा. सो वी हैव हियर styrene as the monomer, then you are having benzoyl peroxide as catalyst, then you are getting a polymer that is CH single bond CH2, यहाँ पे benzene whole N, and this gives you polystyrene from the monomer styrene. It's a homopolymer because the monomer is the single entity. There are not two different monomers over here. This is a single monomer, that is styrene. So we have here polystyrene. Now, what can be its properties and uses? So we are having here, जिस तरीके से आपका जो है, meanwhile one more point I should add here is, polyethylene में जो है इसको हम sheets भी बनाते हैं. We can make sheets, we can make films, we can make fibers. So polyethylene एग्जिस्ट करता है शीट्स में भी, ताकि पैकेजिंग में इस्तेमाल होगा, फिल्म्स में भी, या फिर किस में, फाइबर्स में भी. नाउ वी आर हैविंग दिस प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीस्टाइरीन. ये भी एग्जिस्ट करता है. इट्स अवेलेबल इन थ्री फॉर्म्स. Number one is hard plastic, and number second is lightweight foam form, and number third is basically film, thin film. So ये hard plastic में भी एग्जिस्ट करता है, मतलब शीट्स, फोम में भी और फिल्म्स में भी ये एग्जिस्ट करता है पॉलीस्टाइरीन. अब नेक्स्ट इज, इट इज रेजिस्ट. जिस तरीके से पॉलीइथाइलीन रेजिस्टेंट था तो केमिकल्स, उसी तरीके से ये भी है. इट इज रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, एसिड्स ऑब्लिक बेसिस, एंड वाटर रेजिस्टेंट आल्सो. इट्स आल्सो इंसुलेटर, फॉर इंसुलेशन पर्पज ये इस्तेमाल होता है. एंड दिस इज ऑल्सो थर्मोप्लास्टिक. जिस तरीके से आपका जो है थर्मोप्लास्टिक वो था पॉलीथाइलीन, सो यू कैन हीट इट टू सॉफ्टन इट एंड टू मेल्ट इट, जिसकी वजह से आप इसको डिफरेंट शेप्स में तब्दील कर सकते हैं. हैंस इज रिसाइकलेबल, हैंस इज recyclable. You can recycle it into different shapes and different forms. It's a transparent polymer. It's a transparent polymer. मतलब ये पॉलीमर जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है. ट्रांसपेरेंट होने के कारण जो है आप इसको ट्रांसपेरेंट गिलासेस में तब्दील कर सकते हैं. यू कैन मेक गिलासेस, जैसे हमारे पास होते हैं ट्रांसपेरेंट कप्स होते हैं, या फिर आपके पास गिलासेस होते हैं, प्लास्टिक गिलासेस, वो इन्हीं के बने हुए होते हैं बिकॉज ऑफ बीइंग ट्रांसपेरेंट. तो ये जो है इनके प्रॉपर्टीज है. नेक्स्ट इज, अब जो है इसका यूज कैसे होता है, ये हम इस्तेमाल करते हैं थ्रो अवे आइटम्स में. इट्स यूज्ड इन आइटम्स विच आर थ्रो अवे. फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग कप्स, हम इससे बनाते हैं ड्रिंकिंग कप्स. ड्रिंकिंग कप्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स बोटल्स जो होते हैं वो हम बनाते हैं, या बेबी फीडिंग बोटल्स, जो बोटल्स होते हैं जिसमें बेबी को फीड किया जाता है, वो भी बने हुए होते हैं इन्हीं के. बिकॉज आई टोल्ड यू राइट नाउ इट्स अ ट्रांसपेरेंट पॉलीमर, जिसकी वजह से आप ट्रांसपेरेंट कप्स बना सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बना सकते हैं, या बेबी बोटल्स बना सकते हैं. वन मोर पॉइंट इज, या इन बोट, चूंकि हम इसको सॉफ्ट, इट्स अ थर्मोप्लास्टिक, सिंस इट्स अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, आप इसको हीट करके सॉफ्टन कर सकते हैं, उसके बाद मेल्ट कर सकते हैं. मेल्ट की वजह से आप इसको कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं. जब आप इसको कलर ऐड करेंगे तो आप टॉयज बना सकते हैं इसको. यू कैन मेक टॉयज ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स. नेक्स्ट इज,
You can also do one thing that अगर आपने इसको गैस बबल किया, गैस balloon into polystyrene liquid, मतलब पॉलीस्टाइरीन जो पॉलीमर है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 240 डिग्री सेल्सियस। तो 240 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये मेल्ट होता है तो आपने इसको मेल्ट कर दिया, लिक्विड फॉर्म में तब्दील किया, फिर उस लिक्विड में अगर आपने गैस ब्लोन किया, गैस डाल दिया, तो ये फोम बनेगा। इट फॉर्म्स फोम, इट फॉर्म्स फोम। तो फोम जो है ये फिर हार्ड होती है। दिस देन हार्डन्स, दिस देन हार्डन्स। जब ये फोम हार्डन होती है उसके बाद में जो है इसके आपके डिफरेंट मटेरियल्स बनते हैं। लाइक जो हार्ड होने के बाद में जब ये फोम हार्ड होती है उसका नाम पड़ता है स्टायरोफोम। द हार्ड फॉर्म इज कॉल्ड एज स्टायरोफोम। स्टायरोफोम, स्टायरोफोम कैसे बनता है? आपके पास पॉलीस्ट्रीन है एज अ हार्ड प्लास्टिक, उसको आप मेल्ट करते हैं ताकि आप उसको लिक्विड बनाते हैं। लिक्विड बनने के कारण बाद में आप इसको गैस बलून करते हैं। गैस जब आप उसको बलून इसमें डालते हैं तो इट फॉर्म्स फोम। वो फोम फिर हार्ड होती है जिसका नाम है स्टायरोफोम। एंड दिस इज देन यूज्ड टू मेक, दिस इज देन यूज्ड टू मेक आइस चेस्ट्स या फिर कॉफी कप्स, डिस्पोजल कॉफी कप्स। आप डिस्पोजल कॉफी कप्स भी इससे बना सकते हैं इस फॉर्म से। दीज आर सम ऑफ द यूजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ polystyrene polymer, polystyrene. And we talking about two polymers over here. The first polymer was polyethylene. इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रिपरेशन, इसमें प्रॉपर्टीज क्या है? इसमें तीन एग्जिस्ट करते हैं। LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन है। वी हैव हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वी हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथीन। लाइट वेट है, इंसुलेटर है, इंसुलेशन में इस्तेमाल होता है, केमिकल को अटैक नहीं करेगा, वाटर भी रेजिस्टेंट है, तो प्लास्टिक भी है, थर्मोप्लास्टिक, जिसकी वजह से डिफरेंट शेप्स हम बना सकते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो पॉलीस्टाइरीन में भी है। इट्स ऑल्सो ड्यूरेबल, इट्स गुड फैटिग, एंड इनका यूज ऐसे ऐसे होता है। नाउ इन एडिशन टू दैट, पॉलीस्टाइरीन में एक एडेड एडवांटेज है दैट इट्स अ ट्रांसपेरेंट पॉलीमर। इट्स अ ट्रांसपेरेंट पॉलीमर, जिसकी वजह से क्या है, आप इसको जो है आप इसको डिफरेंट सिस्टम्स में बना सकते हैं। लाइक ड्रिंकिंग कप्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, या बेबी फीडिंग बोटल्स है, या आप जो टॉयज इसमें बना सकते हैं, कलर टॉयज, बिकॉज ऑफ इंसर्टिंग कलर इनटू इट वंस यू मेल्ट इट। एंड अगर आपको स्टायरोफोम बनेगा, स्टायरोफोम इज यूज्ड टू मेक disposal coffee cups. This is some of the use and properties of these polymers. And the other polymers like polyvinyl chloride, polypropylene, Orlon, we'll be talking about those also in separate videos. Till then, take good care of yourselves. Thank you very much.